اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو ہلو، ہاں بھائی بولیے۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی صاحب، کون بول رہا ہے آپ؟ میں تو محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں۔ جی محمد طاہر رضا قادری۔ ہلو، آ رہی ہے آواز آپ کو؟ ہاں آ رہی ہے۔ آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی صاحب، کیا بات ہے؟ میری آواز آپ کو جا رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ ہاں تو آپ کا کیا نام ہے بھلا؟ میرا نام محمد۔ پورا نام یہی محمد ہی؟ ہیلو، جی بولیے۔ میں کہہ رہا ہوں پورا نام یہی ہے آپ کا محمد؟ نہیں، محمد قاسم نام۔ محمد قاسم۔ کچھ آپ کا تخلص بھی ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہے۔ اچھا، کہ ابھی آپ نے کسی سے بات کر کے ایک ریکارڈنگ ڈالی تھی دیوبندی کے چینل پر؟ ہاں جی، دیوبندی کے چینل پر آپ نے ریکارڈنگ ڈلوائی تھی تبلیغی جماعت کے تعلق سے؟ جی ہاں ڈالی تھی۔ ہاں آپ نے ڈلوائی تھی نا وہ؟ جی جی، ہاں، ملا اظہر نے جو بات کرائی تھی میری آپ سے کرائی تھی نا؟ ملا تھن نے؟ جی ہاں ہاں ہماری کر رہی تھی۔ ہاں، بھول گئے آپ مجھے؟ نہیں بھولے، وہ تھوڑا سا کیا بچے کا موبائل ہے نا۔ اچھا، میں تو نام بتا رہا ہوں کہ میرا نام فلاں ہے۔ نہیں ہاں، پہچان ہے۔ تو وہ آپ تبدیلی جماعت کے بارے میں جو بڑی تعریفیں کر رہے تھے، تو آپ کیا مانتے ہیں تبدیلی جماعت کو؟ حضرت ہاں کیا مانتے ہیں آپ؟ ابھی تو کچھ نہیں مانتے۔ نہیں، آپ نے تو ریکارڈنگ ڈلوائی ہے نا ان کی بڑی تعریف کر کے۔ کوئی کلمل کشمیر کا کسی عالم کا لڑکا کہ تبدیل جماعت میں چلا گیا، کون سے عالم کا لڑکا گیا تھا وہ؟ وہ جبار بھائی کا لڑکا گیا تھا۔ اچھا، تو اس میں کیا ہوا پھر؟ آپ کو معلوم نہیں، آپ ریکارڈنگ دیکھو نا۔ نہیں آپ بتاؤ نا مجھے، میں آپ سے بات کروں گا، میں معلوم کس سے کروں گا؟ میں تو آپ سے بات کروں گا۔ آپ تبدیلی جماعت کو مانتے کیا ہیں؟ تبلیغی جماعت ایک اچھا کام کر رہی ہے۔ اچھا مانتے ہیں اسے؟ اچھا مانتے ہیں، بہت اچھا مانتے ہیں۔ ہاں، تو تبدیلی جماعت رائے کس نے کی تھی؟ کیا یہ تبدیلی جماعت کا طریقہ رائج کس نے کیا تھا؟ بھائی، یہ آپ جاننے کی کوشش، راجش کیا کیوں گیا وہ؟ جی رائش کیا کیوں گیا وہ؟ نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں رائج کیا کس نے تھا یہ؟ رائج ہوا کیوں؟ نہیں، یہ طریقہ نکالا کس نے تھا؟ دیکھیے، دنیا میں جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ سب دین کو قائم کرنے کے لیے کر رہی میں جتنی کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں صرف تبدیلی جماعت جو آپ جس کے لیے آپ نے ریکارڈنگ بنا کر ڈالی تھی، میں اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ تبدیلی جماعت کا نکالا کس نے تھا یہ؟ ہیں۔ یار اس ٹائم پہ ہم تو تھے نہیں۔ تو آپ نے تعریف ویسی کر دی؟ جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس نے نکالا ہے یہ، تو آپ نے تعریف کیوں کی؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ تو آپ سوچیں نا کہ آپ نے ریکارڈنگ بنوا کے، آپ کون ہے ویسے؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کے عطا اللہ حسین قادری، جی مسئلہ کے قادریہ۔ مسئلہ قادریہ۔ تو اس وقت جو ہے نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ ارے ہم تو خود نماز پڑھاتے ہیں نا، امام ہیں ہم۔ آپ خود نماز پڑھاتے ہو؟ اچھا، تو تبدیلی جماعت کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور آپ نے تعریف کر کے ایک ریکارڈنگ بنا کے جھوٹی سے ایسی سچی باتیں ملا کر اس میں ریکارڈنگ ڈال دی۔ تو بری بات ہے کیا کوئی بری بات کر دی کیا؟ بری بات ہے، کم سے کم کچھ جاننا بھی چاہیے نا۔ اب جس بات کو ہم اگر پیش کریں گے کسی کے سامنے تو کوئی ہم سے سوال کر سکتا ہے نا کہ اس کے بارے میں تم معلوم ہے، تم پیش تو کر رہے ہو اسے۔ تو آپ کیا مطلب، آپ کا کیا پرپز ہے سب کو جاننے کے بارے میں؟ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہیں بریلویوں کی برائی کر رہے تھے اس ریکارڈنگ میں، اور اس کے تھمبنیل پر بھی لکھا ہوا تھا کہ بریلویوں میں پیٹ میں آگ لگ گئی۔ میں بریلوی ہوں، تو بریلویوں کے پیٹ میں کیا آگ لگی دیکھی آپ نے؟ بریلوی کہتے کیسے ہیں؟ بریلویوں کا مقصد کیا ہے؟ مطلب بریلوی کوئی نہ مسلک ہے نہ کچھ ہے، بریلوی صرف ہمیں نام کے لیے منسوب کر دیتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کون ہوتے ہیں؟
जो सहाबा के तरीके पर चले, नबी की सुन्नत पर अमल करे। और कुरान को क्या मानते हैं आप? कुरान बताया किसने है हमें? अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम बताया किसने हमें कि ये अल्लाह का कलाम है? अल्लाह का कलाम तो जब से दुनिया बनी, जब से अल्लाह का कलाम है। ये बताया किसने हमें? ये नहीं, ये भी गलत कह रहे हो तुम, जब से दुनिया बनी। हमें जो बताया वो किसने बताया? ये एक मौजूद दूसरा हो जाएगा मुनाजिर साहब, ये मौजूद दूसरा हो जाएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि तब्दीली जमात को आप क्या मानते हैं? क्या दीन का काम करने वाली मानते हैं, अच्छी मानते हैं? तो क्या है वो, किस चीज का नहीं, काम कर रही है? आप क्या मानते हैं? मेरा मानने ना मानने से क्या होगा? मानने न मानने से ये होगा कि आपने जो रिकॉर्डिंग बना के डाली है तो आपने कुछ सोच के डाला होगा ना। या तो आप ये मानते होंगे ये दीन का काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, या क्या दूसरे तरीके से, मतलब किस हिसाब से डाली है आपने? क्या आप मकसद क्या था आपका? तबलीगी जमात को? मैं क्या मानता हूँ? मतलब ये आपका तरीका कौन सा था आपके? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो आप सवाल पर मुझसे सवाल कर रहे हैं। मेरा मानना आप बाद में पूछिए, पहले आप ये बताइए कि आप क्या मानते हैं, क्या दीन का काम कर रही है ये? तबलीगी जमात जो है अपने नफ्स के लिए तो कुछ नहीं कर रही, वो तो जो है इस्लाम का ही काम कर रही है ना, नमाज की दावत दे रही है तबलीगी जमात। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप तो अच्छा मान रहे हैं ना उसे? आपको भी अच्छा मानना चाहिए उन्हें। अभी साहब हमें भी अच्छा मानना चाहिए। क्या मानते हैं आप? इनमें तब्दीली जमात पे तुम्हारे दारुल देवबंद वालों ने तो गुमराही का फतवा लगा दिया, ये यार गुमराह है। दारुल उलूम देवबंद वाले क्या मानते हैं आप दारुल उलूम देवबंद? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जब तुम तब्दीली जमात को अच्छा मानते हो तो तब्दीली जमात और दारुल उलूम देवबंद एक ही तो है, ये सब एक ही तो अकायद के हैं, तो वो तो फतवा लगाना इन पे कि गुमराह है। तुमने अच्छा कैसे मान लिया? इसका मतलब तुम दारुल उलूम देवबंद के अकाबिनों को, अपने अकाबिनों को, दारुल उलूम देवबंद के आलिमों को मानते ही नहीं हो, ये तुमने रिकॉर्डिंग बना कर डाली है। अब मैं बात तुम्हारी मानूं या जिसने ये तब्दीली जमात कायम की है उसकी बात मानूं मैं? तुम झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोल दिया? तुमने ये झूठ बोल दिया कि ये तब्दीली जमात जो कायम की है मौलाना इलियास ने की है, जो कांधले का रहने वाला था, उसने तरीका राइज किया है। वो खुद अपनी किताब का नाम है मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत, उसमें वो कह रहा है इलियास कि मियां जहीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं। समझे नहीं? तो आप ये बताओ, मौलाना इलियास जो है अपने नफ्स की बात बता रहे थे या दीन की बात हाँ, बताई? वही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम गलत फैमिली से हो, तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आई, तुमने वैसी तारीफ कर दी। वो इसमें कह रहे हैं कि जहीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं, लोग समझते हैं कि ये तहरीक सलात है। क्या कि तब्दीली जमात जो है कि तहरीक सलात है? मैं कसम से कहता हूँ कि ये हरगिज तहरीक सलात नहीं। वो कसम खा रहे हैं कि तहरीक सलात की नहीं है, नमाज की तहरीक नहीं है। कौन कह रहा है? ये मौलाना इलियास जिसने ये राइज की थी कांधले वाले ने, और वो कह रहा आगे, एक रोज बड़ी हसरत से फरमाया कि मियां जहीरुल हसन मुझे तो एक नई कौम पैदा करनी है, और तुम कह रहे हो कि नमाज की तहरीक अच्छे काम कर रही है। तो तुम्हारी बात माने या जिसने राइज की उसकी बात माने? हम तुम्हारी मानी जाएगी। अभी आप जो है मुझे एक बात समझाएं, आप मोमिन हैं या मुसलमान हैं? तुम कौन होते हो मेरा इम्तिहान लेने वाले? इम्तिहान नहीं ले रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। पहले मुझे इसका जवाब दो कि मैं तुम्हारी बात मानूं या इसकी मानूं, इलियास की। वो तो मैंने कर दिया कि तहरीक सलात नहीं है। तुमने कैसे कह दिया कि ये अच्छी जमात है और दीन का काम कर रही देखिए, है? आप जो नजरिए पे चल रहा है आपको लोग वैसे ही देखेंगे। तुमने किस नजरिए पे डाली हो रिकॉर्डिंग बना के कि बरेलवियों के पेट में आग लगी? क्या नजरिया था तुम्हारा? आपका नजरिया जो होगा उस नजरिए से आपको लोग देखने वाले हैं। लोग तो देख रहे हैं सब, तुम्हारी जितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है और जितने बड़े तुम पे थू कर रहे हैं लोग, सब आप सोशल मीडिया पर आ रही हो सब। अब सुनो, अब ये क्या कह रहे हैं मौलाना इलियास, अब सुनो इनकी, ये है मलफूजात मौलाना इलियास, इसमें ये कह रहे हैं एक बार फरमाया, आप दीन को मौलाना सुन लो, इलियास के इस पे चला रहा है या अल्लाह के दीन तुमने को किस अल्लाह के उस पे चलाएंगे? तुमने किस उस पर डाली कि तब्दीली जमात की दीन का काम कर रही हो? तब्दीली जमात का दारुल देवबंद का फतवा है कि पहले गुमराह आप है। ये बताएं मुझे ये कि दीन जो है अल्लाह का है या मौलाना इलियास का है? मेरी बात सुनो, तुमने क्या समझ के डाली रिकॉर्डिंग? तुमने दीन अल्लाह का समझ के डाली है ना, इलियास की समझ के डाली? ये तरीका इलियास का है। इलियास मैंने कर दिया कि नमाज की तहरीक नहीं है, और मैं कसम खाता मौलाना हूँ इलियास कौन होते हैं दीन में कुछ करने वाले? जिसने इलियास तो जिसने खुद ये मौलाना जिसने दीन को मानने वाले हुए। जिसने ये तबलीग जमात गाँव फिराने का तरीका निकाला वो होती है, उसने निकाला है तरीका है। आप वो सुन दो, बड़ा बड़ा मत करो। आप वो क्या कह रहे हैं और सुनो, ये किताब मेरे हाथ में, आप मलफूजात दीन को मौलाना इलियास।
सुनो, आप दुनिया के अंदर क्या मकसद से पैदा किए गए हो, या आपका भी कोई ये है कि मेरा आप मेरा वो मौजू नहीं है, मैं आपसे सीखने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको बताने आया हूं कि आइंदा ऐसा कभी भी हरकत मत करना। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ये मलफूजात है, मौलाना लिया इसमें कह रहे हैं ये, एक बार भाई, फरमाया हजरत आप मौलाना जो भी बोल थानवी। रहे हैं हम आपके मलफूजात नहीं अरे सुनना सुन लो, चाह रहे। सुन लो, थानवी नहीं, ने बहुत बड़ा हम नहीं काम सुन रहे किया है। आपकी बात, आप बस हमारी मेरा बात दिल सुन लें। दिल ये आपके चाहता है फायदे कि की बात है, तालीम तो उनकी हो। आप अरे सुन तो लो इनको जरा, इनके अरे किसी सुन के तो लो, बड़बड़ की मलफूजात से नहीं दुकान, चला जाता। बड़बड़ की दुकान सुन लो जरा। वो कह रहे हैं कि मौलाना थानवी ने दीन का बहुत काम किया है, जी चाहता है कि तालीम तो उनकी हो, किसकी, थानवी की, और तबलीग का तरीका मेरा हो, कि इस तरह उनकी तालीम भी आम हो जाएगी और फिर मेरा तरीका भी आम हो जाएगा। तो वो कहना है तरीका मेरा है और तालीम थानवी की, ना तो अल्लाह की तालीम है, ये नबी की तालीम है, और ना तरीका नबी का है, ना सहाबा का तरीका है। तो तुमने कैसे डाल दी रिकॉर्डिंग बना के कि दीन का काम कर रही है? दीन का तो मैंने करना है इसमें भी। ये कह रहे हैं तरीका तो मेरा हो गया, और मतलब दीन का काम होगा उसका थानवी का, और थानवी की बातें मुझे लोगों को चाहिए। तो तुम्हारी बात मुझे मानी आप जाए, इनकी बात नहीं माने जाए, बातें मानी जाए। मुझे तुमने आप ये किसकी बात डाली समझा रिकॉर्डिंग बना के? वो कैसा बरेलियों के पेट में आग लग गई, क्या आग लग गई? अब दूसरी है वो सुन लो जो, तुम्हें मालूम नहीं है और तुमने रिकॉर्डिंग बना के डाल दी। अभी तुम्हें ये पता नहीं है कि रजा के गुलाम में भी जिंदा है। ये किताब है मेरे हाथ में, इसमें ये कह रहे हैं, ये लिखने वाले हैं मोहम्मद ईसा खान, चंद गलत तावीलात व तजावात का इल्मी शरी मुहासबा। इस पर क्या कह रहे हैं ये? क्योंकि तबलीगी जमात पर इस काबिल इस वक्त जाहिल अमरा का कब्जा है, और जो उलमा इस जमात से वाबस्ता हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शब जुम्मा या इज्तिमात में जोहला बयान करते हैं, जिससे अकाइद खराब हो रहे हैं। अकाबरीन तबलीग को अगर फिक्रमंद आप होने की कुरान से कोई बात कर रहे जरूरत है। हो तो आप मुझसे बात करो, मैं तुमने कुरान कौन के सी बात सामने कुरान से आपसे की है बात जो कर तुमने बना कर सकता हूँ, डाली थी? वो बाकी कोई बात नहीं तुमने करता। कौन सी, चलो कुरान से बात कौन सी करी तुमने उसमें जो रिकॉर्डिंग बना कर डाली है आपने? कौन सी बात आपकी कुरान की कुरान थी? की बात करो आप मुझसे, अगर आप कर उसमें सकते कौन से हो कुरान की बात थी तुम्हारी? बात कर सकता हूँ और मैं अब इस जमात मलफूजात से के जरिए ऐसे बात कर लोग सकता हूँ। पैदा हो रहे हैं जो पिटानी मदारिस के दुश्मन, मेरा उलमा के मैं दुश्मन, पिटानी पे और दरस कुरान के दुश्मन, जिहाद के मुनकिर, अमाल के पाबंद और अकाइद से जारी होते हैं। दुश्मनाने सहाबा होते हैं। 20-20 लाख के इज्तिमा में दरस कुरान से रोका जा रहा है। उलमा को बजाही सर का ताज कहने वाले जब निजी मजलिसों में बैठते हैं तो कहते हैं कि उलमा में तकब्बुर होता। उस वक्त उलमा उम्मत की जिम्मेदारी कोई नहीं संभाल रहे, जिम्मेदारी सिर्फ तबलीगी जमात संभाल रही है। और ये कह रहे हैं तबलीगी जमात नाम तो बड़ा प्यारा है, लेकिन ये आसीम के सांप है। ये दीगर फिरका बातिला से ज्यादा खतरनाक है, ये ईमान के लुटेरे बन चुके हैं। बात कर लें। ये तब्दीली जमात के लिए कह रहे हैं। और किससे बात कराओगे? रुक जाओ। सद्दाम से बात कराओगे? अब तुम भाग रहे हो, रिकॉर्डिंग बना बना कर डाल रहे हो। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि रजा के गुलाम अभी जिंदा है, तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख देंगे। तुम तब्दीली जमात अरे की अल्लाह तैयारी के करो। गुलाम चचा, सुनो मेरी बात। हाँ, अगर कुरान के जरिए कोई बात कर सकते हो तो करो, नहीं तो बिल्कुल आप फोन काट तुमने सकते जो हैं। रिकॉर्डिंग बना कर डाली थी वो कुरान की बात करके डाली थी उसमें? कुरान की बात करो अगर कर सकते हो तुमने तो। कुरान की बात की थी। आइंदा ऐसी बात करोगे तो नहीं बोलो। फोन काट आइंदा दो ऐसी आप। बात आइंदा ऐसी बात तो नहीं करोगे? तुम ये लोग बात कुरान बताओ, जाहिल आइंदा हो, ऐसी बात तो नहीं करोगे? जाहिल तुम हो, पक्के अजहल हो। तुम अजहल हो, जाहिल नहीं हो, अजहल हो। अगर कुरान तुम्हारे पढ़ते तो मुजद्दिद अशरफ अली थानवी खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मैं जाहिल नहीं अजहल हूँ। मोमिन हो जाते, मुसलमान हो जाते। तुम मिल्लत देवबंदी होके और अपने आप को बताते हो हम कादरी हैं, कादरी। अरे हमने मैं ये इब्राहिम पूछ इस्लाम की मिल्लत में से पैदा करा और तुम्हारा नाम मुसलमान रख दिया, और सूरह मोमिनून के अंदर कहा वल्लज़ीन मैं ये यक़ूलूना पूछना नहीं चाह रहा तुमसे सीखूंगा नहीं मैं जानता हूँ ये वो मुसलमान हम हैं, तुम्हारा इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। मुझे तुम ये बात बताओ कि तुमने जो रिकॉर्डिंग डाली थी उसमें कुरान की कौन सी बात की थी? कौन से कुरान की बात की थी उसमें तुमने? जाहिल आदमी, कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान तो सुन ले कम से कम। अरे जाहिल, मैं काफिर से तक कुरान नहीं सुनता हूँ। तुम काफिर हो, काफिरों का कुरान नहीं सुनता हूँ मैं। काफिर साबित कर दे, माथे पे काफिर लिखवा ही हो तुम। तुमने अभी कह दिया कि तबलीगी जमात अच्छी हो, उस मुझे पर काफिर गुमराही का साबित फतवा कर लगा दे, रहे हैं, माथे पे लिखवा लूंगा। और वो थानवी की तालीम आम कर रहे हैं। थानवी पक्का काफिर था, जो थानवी की तालीम आम करे वो भी काफिर है। थानवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। नबी का इल्म जानवरों पागलों जैसा अरे बताया। थानवी को मार दे गोली तू, मैं क्या कोई कह रहा इन्हें गोली मार जमात हूँ, इस्लाम कोई मतलब नहीं है। इन्हें तबलीगी जमात वालों को क्यों नहीं मारना है इनकी गोली? क्यों तूने मतलब अगर वो कुरान के मतलब थानवी को सुनने मार वाला दे है तू रिकॉर्डिंग? गोली। अबे थानवी से मजबूत हमें कोई शैतान, मतलब तूने जो नहीं है। रिकॉर्डिंग डाली क्या थानवी उसमें का तूने दीन कुरान का फॉलो जिक्र नहीं किया करते, कोई? हम अल्लाह का दीन फॉलो तूने करते कुरान का हैं। जिक्र किया कोई उसमें? तूने थानवी का रिकॉर्डिंग दीन डाली, नहीं है ये, अल्लाह का दीन तूने है, और रिकॉर्डिंग जो अल्लाह के डाली रसूल का दीन क्या है। क्या समझ के डाली थी तूने? वो झूठ बोल रहा था कज्जाब। कौन से मतलब बरेलवी का लड़का चला गया जमात में? झूठे कज्जाब। यार जमात से कोई मतलब नहीं है ना, तो मजबूत शैतान मतलब नहीं है। उस दिन तूने रिकॉर्डिंग बना के झूठी डाल दी ऐसे ही, या मतलब नहीं है? समझ ले तू। मजबूत शैतान, बात तो सुन, इस पे मेरी तेरे बात दारू सुन, देवबंद वाले गुमराही का फतवा लगाने और तू लेकर चला तब्दीली जमात को। अभी तो कह रहा है कि अच्छी तब्दीली जमात, तो तुम्हें भी अमल करना चाहिए इस पर। और इलियास मैंने कर रहा कि दिन की मतलब ये सलात की वो नहीं है, ये तहरीक सलात की नहीं है, नमाज की तहरीक नहीं है। मेरी बात सुनो,
तबलीगी जमात का कह रहा हूँ ना, तबलीगी जमात का मसला ये है कि तबलीगी जमात जो है, जो अपने तौर पे जो कुछ काम कर रहा है वो अपने तरीके पे सही कर रहा है, और तुम जो अपने तरीके पे काम कर रहा हो वो अपने तरीके से सही कर रहा हो। हर इंसान तुमने जो अपना रिकॉर्डिंग नजरिए से डाली, सही काम तुमने कर रहा किस उस पर डाली थी, वो क्या समझ के डाली तुमने? कौन से कुरान की तिलावत की थी समझे तुमने रिकॉर्डिंग डाली? मुझसे कुरान का मुतालबा कर रहे हो? है। ये बताओ मुझे तुम। इसमें दूसरी जगह लिख रहे हैं ये, तो जब तबलीग का अमर मुतलक और आम है तो हस्ब क़वाई शरिया मज़कूरा अस्साबिक़ तबलीग किसी खास तरीके कैफियत और हैयत से मुक़ीद महदूद मुतय्यन मखसूस अपनी राय से करना शरी मोहम्मदी का हुलिया बिगाड़ देना है और हुदूदुल्लाह से तजावुज़ करना है। यही तगय्युर शरा तब्दीली हदुल्लाह अहदुस्सिद्दैन और बिदत जलालत है। तब्दीली जमात को तुम्हारे मौलवी खुद देवबंदी ये कह रहे हैं कि ये बिदत जलालत है, और तुम कह रहे हो कि अच्छी तबलीग है। और जिसने ये राइज की है वो खुद मना कर रहा है कि ये सलात की तहरीक नहीं है, मुझे तो एक नई कौम पैदा करनी है। अब ये किताब मेरे हाथ में और हिसाब देखिए सामने हजरात, ये कह रहे हैं मगरबी ममालिक और खास तौर पर अमेरिका जानता है कि जमात दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर हमारे मकासद और मफाद के लिए काम कर रही है। इस जमात की पाकिस्तान में क़यादत शुरू ही से जदीद तालीम याफ्ता हजरात के हाथ में रही है, जिनकी दीनी मालूमात बराए नाम होती है और बसीरत तो बराए नाम भी नहीं होती, इसलिए बातिल के लिए करने वाला साबित हुए। समझे ना? ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए काम कर रही है तब्दीली जमात। कहाँ गए साहब देवबंदी साहब? आ गए क्या? अरे नहीं भागे, सुनता है भाई। सुन रहे हो? आप सुनो, ये मेरे हाथ में किताब है, ये इनकिशाफ हकीकत। इसमें ये कह रहे हैं यहाँ फिजदार में कोई किताब को नहीं मानता, मैं कलाम एक कुल्ली में जमात आई हुई थी और फिर अमीर जमात ने, अरे सुन लो जरा, इमाम साहब अब्दुल कुदूस से पूछा कि इस मस्जिद में फजाइल अमाल शरीफ नजर नहीं आता। मैंने, अरे सुन लो एक मिनट सुन लो, मैंने जवाब में कहा वो टेबल पर कुरान करीम के नीचे रखी हुई है, तो उसने जल्दी से जाकर उसे कुरान करीम के नीचे से निकालकर कुरान करीम के ऊपर रख दिया और कहने लगा इसे यानी फजाइल अमाल का को कुरान के ऊपर रख दिया करें। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगा कि इस किताब ने इस्लाम को दुनिया में कितना फैलाया है, कुरान ने कहाँ फैलाया है। मुझे इसके जवाब में पर बहुत हैरानगी हुई कि ये जमात इस्लाही जमात है या कुछ और। यानी वो कह रहा है कि जितना दीन इससे फजाइल अमाल से फैला है इतना कुरान से कहाँ फैला है, और तुम कह रहे हो तब्दील जमात अच्छी है। अबे यार तुम्हें गैरत नहीं चाहिए। अब मुझसे कुरान की बात कर रहे हो तुमने कुरान की कौन सी आयत पढ़ी थी? तुमने कौन से कुरान की आयत पढ़ी थी तुमने रिकॉर्डिंग बना कर डाली हो? ये बता दो मुझे। हिदायत सिर्फ कुरान से मिल सकती है। नहीं हिदायत वो मैं जानता हूँ, मगर मुझे बताओ कि तुमने कुरान की कौन सी आयत पढ़ी थी जिसमें तुमने वो डाली रिकॉर्डिंग बना के साहब उसका लड़का तब्दीली जमात से चला गया? यार एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात समझाओ, तुम दीन को फॉलो कर रहा हो, किस तरीके से मान रहा हो यार अल्लाह के कलाम अब को? तुम्हारे मानने ऐसे मानने हैं हम तुम्हारे जैसे गुमराहों को ना आईना दिखा रहे हैं कि ताकि तुम हिदायत पर आ जाओ और सही रास्ते को इख्तियार कर लो। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी और मेरी उम्मत में 73 फिरकों होंगे, एक ही जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। कौन सा फिरका जहन्नम में जाएगा, कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा? नबी ने बता दिया सब कुछ, सब निशानदेही फरमा दी, सब निशानदेही फरमा दी है, सबकी निशानदेही फरमा दी है। अंदर 29 फिरके हैं, बरेलवियों के अंदर 12-15 फिरके हो चुके हैं। हमारे अंदर कोई फिरका नहीं है, हम सब एक हैं, हमारे अकाई सबके एक हैं। फिरके नहीं है वो हमारे, वो हमारा फिरका कोई नहीं है, वो हमारे सिलसिले हैं। फिरका ऐसा नहीं कहते हैं, हमारे सिलसिले हैं वो। फिरका तुम्हारे अंदर है, एक देवबंदी ममाती बन गया और एक हयाती बन गया, एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। देखो एक फिर उसी किताब का हवाला देता हूं मैं, इनकिशाफ हकीकत, इसमें कह रहे हैं ये और सुन लो यार तुम हाफिज साहब, ये बड़े मजे की बात है कि मैंने जवाब में कहा कि कुरान में क्या नहीं है। वो कह रहा कुरान में क्या रखा है, तुम हर वक्त कुरान ही पढ़ते रहो, कि मैं कुरान करीम को हमेशा ना बयान करूं और इसे छोड़ दूं। तो उस जवाब को सुनने के बाद वो तब्दीली कह रहा था उससे कि तुम हर वक्त कुरान ही पढ़ते रहते हो, उसमें कुरान में क्या रखा है? तो वो कह रहे हैं कुरान में क्या ना है जो मैं इसे छोड़ दूं। तो उस जवाब को सुनने के बाद रायवंडी तबलीगी ने कहा कि मेरे बस की बात होती तो मैं इसे कुरान करीम को गटर में फेंक देता, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये तबलीगी जमात वाले हैं, ये तुम्हारे घर की किताबें हैं जो पढ़ रहा हूँ। हाफिज साहब कुछ शर्म सुनो, मेरी बात सुनो आप। मैंने कहा किसको? उसने जवाब में कहा कि कुरान को, और तुम तब्दीली जमात को कह रहे हो कि अच्छी जमात है ये। तो इसलिए मैं तुम्हारे जैसे गुमराहों को ये बताना चाह रहा हूँ कि सही रास्ते पर आ जाओ। जो अल्लाह और उसके महबूब ने हमें बता दिया, जो अल्लाह ने अपने महबूब को बताया और महबूब ने हमें बताया कि सच्चा रास्ता अच्छा रास्ता कौन सा है, उस रास्ते को इख्तियार करो।
ये सब नबी के देखो गुस्ताख सच्चा हैं। रास्ता कुरान का रास्ता है, सिवाय हाँ, कुरान के तुम्हें किसी चीज से हिदायत नहीं मिल तो सकती। ये बात और बताओ तुम कि जो मुझे, जो किताबें नबी लिए बैठे करीम हुए हो, इससे सल्लल्लाहु अलैहि हिदायत नहीं वसल्लम की मिलेगी शान तुम्हें। में, सुनो मेरी बात सुनो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, क्या वो मुसलमान है? हिदायत तुम्हें बोलो, कुरान से मिल सकती है अगर हिदायत ये हासिल बताओ करना कि चाहते हो तो। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना से भी गुस्ताखी करे, क्या वो मुसलमान है? यार मैं साबित नहीं कर सकता इस चीज को यार मेरे भाई। तुम साबित क्यों नहीं कर सकते? तुमने रिकॉर्डिंग बनाकर डाल दी कि बरेलवी को पेट में दर्द हो गया, आग लग गई है, इसे साबित नहीं करोगे, ये तो तुम्हारी यार मुनाफिकत है। तुम बरेलवी यानी बरेलवी एक जगह का नाम है, बरेलवी कहाँ से होगा, तुम ये तो बता दो। तुमने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले को कुछ नहीं कह सकते तुम, समझे नहीं? लेकिन तुम्हारे अकाबिर जो है ना, ये तुम्हारे दिल से नहीं निकले। ये मरदूद शैतान जहन्नमी कुत्ते जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और अल्लाह को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इन्होंने अल्लाह की भी ये कह दिया कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है, और अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। इनके दिलों में से तुम्हारी मोहब्बत नहीं निकलेगी, और तुम अपने आप को कहते हो मुसलमान। मुसलमान क्या, तुम्हारा इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं है। इस्लाम मुसलमान वो है जो अल्लाह और उसके महबूब की शान में अदना से भी गुस्ताखी सुने तो उसका दिल कांप उठे और कह उठे कि नहीं, ये इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान है। समझे नहीं? ये सहाबा का तरीका था, वो सहाबा के तरीके पर अमल करने वाले हम हैं, अहले सुन्नत व जमात, जिन्हें आज अरे यार कोई बरेलवी के नाम से सहाबा जाना की जाता है। कोई बात सुना दो मुझे, तुम्हें कोई कोई बात सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन की कोई बात सुना दो इसका मुझे जवाब सुफियान। सुनाऊंगा, इसका जवाब दो कि नबी की शान में जो गुस्ताखी करे वो मुसलमान है, काफिर है। चलो मैं सुनाऊंगा तुम्हें, जवाब दो इसका। अरे यार मैं काफिर साबित नहीं कर सकता किसी चीज को यार। सबको मुसलमान मानते हो देख तुम? यार मेरी नजर में मुसलमान वो है अल मोमिन अखुल मुस्लिम, मोमिन मोमिन का भाई है। नहीं तो सब मुसलमान मानते हो जितने भी हैं? अरे यार तुम इंडिया के मुसलमानों को जानते हो, फ्रांस जर्मनी इंग्लैंड लंदन सब जगह मुसलमान रहते हैं, उनको क्या मैं ये मुसलमान नहीं पूछ रहा मानते? हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम सबको, जितने भी फिरके पैदा होंगे, सबको मुसलमान मानते हो? तुम क्यों नहीं मानते मुसलमान इन लोगों को? हम एक को मानते हैं सिर्फ, जो हमारे आका ने फरमा दिया, हम नबी के चाहने वाले हैं और नबी की बात को हम मानते हैं और कुरान की बात मानते हैं। कुरान की बात कर लेते हैं ना तुम अभी, हम कुरान पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बकरा आयत नंबर 8 में फरमाता इनकी है, तबीयत खराब हो रही है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत मत बिगाड़ो, अभी तबीयत सही रखो। व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। सुन रहे हो हाफिज साहब? हाफिज साहब, तबीयत बिगड़ गई क्या तुम्हारी? कुरान सुनते तबीयत बिगड़ गई? अभी तो कुरान की बात कर रहे थे, हैं? तो हाफिज साहब, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुछ लोग कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर चलो और पिछले दिन पर। अरे हाफिज साहब, कुरान हाँ पढ़ते ही सुन नहीं रहा रहे, हूँ तुम्हारी बोलो। तबीयत बिगड़ गई, तबीयत एकदम बिगड़ गई तुम्हारी कुरान सुनते ही। नहीं सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। तबीयत तो यार तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए कुरान सुनकर। सुनना, हाँ सूरह बकरा है, आयत नंबर 8 है। सुन रहा हूँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ समझ लो, सूरह बकरा आयत नंबर 8। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और पिछले दिन पर, लेकिन वो ईमान वाले नहीं है। हाँ जी हाफिज साहब, ये सुन रहा हूँ कुरान आप बोलते हैं। कुरान मना कर रहा है कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है, और तुम कह रहे हो कि जिसे मतलब हम माने, जिसे क्या कहें? इसका मतलब ये कि ये मुनाफिकों की निशानी थी कि मुसलमानों से मिलते थे तो कहते थे हम ईमान ले आए, और जब अपने काफिरों के पास जाते थे तो कहते थे हम तो यूं हंसी मजाक कर रहे थे। तो वही किस्सा तुम्हारा है। मैं तभी तुमसे कह रहा हूँ कि हक की तलाश करो, हक को पहचानो कि हक क्या है। वो हक नहीं हो सकता जो अल्लाह और उसके महबूब की शान में गुस्ताखी करे, वो हक नहीं हो सकता जो सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करे। हक वो है जो सहाबा को भी माने, अल्लाह को भी माने, अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा दुनिया को, तमाम कायनात को पैदा करने वाला कोई नहीं है, वो अकेला है, सबका मालिक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे महबूब और सच्चे रसूल हैं, और सहाबा के रास्ते पे चलो, और जो कुरान कह रहा है उसे मानो। समझे नहीं? ये खामा खा की रिकॉर्डिंग बना के डालना ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। या तो फिर उसका जवाब रखो अपने पास, कि कोई तुमसे सवाल भी कर सकता है। जब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो क्यों कर रहे हो? अब तुम्हारी बात मानी जाए कि तबलीगी जमात अच्छी है, या इलियास की मानी जाए जिसने ये राइज की थी, जिसने तरीका निकाला, वो तो मना कर रहा है। वो तो कह रहा है कि तरीका मेरा हो, तालीम थानवी की हो। थानवी की तालीम सुन लो, 13 साल की उम्र में अपने भाई के सर पर पेशाब कर रहा था वो, ये तालीम थानवी की है। कहाँ है हाफिज साहब? हेलो, अरे भाग गए क्या हाफिज साहब? हेलो हाफिज साहब, हाँ तो लाइन पे है हाफिज साहब सुन नहीं रहे? सुन रहा हूँ भाई, आपकी बात तो बीच में बोलने में मजा नहीं आता।
सुनो, थानवी ने 5 साल की उम्र में नमाजियों के जूते चुरा कर मस्जिद के शामियाने में छुपा दिए थे। 7 साल की उम्र में अपने मामू की दाल की रकाबी में कुत्ते का पिल्ला डाल दिया था। 9 साल की उम्र में बरसात के मौसम में चारपाइयों के पाए बांध दिए थे। अब्बा भीगे थे, भाई भीगा था और चारपाइयां भीगी थी। 11 साल की उम्र में नमाज पढ़ाते हुए नमाजियों को धोखा दिया था। अल्लाह आलम पे इतना खींचा कि अंधे हाफिज जी समझे कि रुकू में गए ही, तो अंधे हाफिज जी रुकू में चले गए। नमाजियों को धोखा दिया और ठिक्का मार के हंसने लगा नमाज तोड़ के मर्दू। और 13 साल की उम्र में अपने भाई के सिर पर पेशाब कर रहा था वो। समझे ना, जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो, तब्दीली जमात तब्दीली जमात। ऐसा है, हक को समझो और हक को समझने की कोशिश करो और ये देखो हक क्या है। अगर तुम्हें जन्नत में वाकई में जाना है और जन्नत की तलब है ना, तो हक की तलाश करो। और हक जो है सिर्फ एक ही है इस वक्त, अहले सुन्नत व जमात, जिसे आज लोग कहने लगे बरेलवी बरेलवी। समझे जी, कहते हैं बरेलवी। तो हम तो चिढ़ते नहीं इस बात से, हम तो कहते हैं ठीक है साहब, कुछ भी कहला हमें, हम तो नबी की शहदाई हैं। चलिए साहब, तुमसे कोई बात ना होगी, बेकार है, हाफिज जी तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है नदीम भाई, फोन काट दो इनका, याद भी काम के नहीं निकले।